Okay, Nevan, record the video today. Okay, now I am starting the recording. Okay, no problem. See here, and now in this second section, link data of the spreadsheet. In our previous class, we completed this one, how to set up the multiple sheets by inserting the new sheets. Okay, yes. Now, second one is create reference to other sheets by using the keyboard and the mouse. And after this, see, we completed these two things in our previous class. Set up multiple sheets means हमारे पास जो sheets हैं आपकी spreadsheet के अंदर, how you create the new sheet, how you add a new sheet in your previous in a workbook, clear, how you manage that, clear, that we learn in our previous class. After that we learn this thing कि create reference means link हम कैसे create करते हैं, reference हम कैसे create करते हैं same sheet में by using the keyboard and mouse. एंड अदर, यदि आपके पास अदर वर्कबुक से हमें रेफरेंस क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करते हैं रेफरेंस मींस लिंक कैसे क्रिएट करते हैं आप बिटवीन डिफरेंट वर्कशीट्स के बीच में लिंक कैसे क्रिएट करते हैं हम. ओके, टिल सेकंड टॉपिक वी कंप्लीटेड इन आवर प्रीवियस क्लास. See here, I am repeating this second concept again, so that's why it is linked with this third topic. Clear? So first I am repeating this concept, that is create reference to other sheets by using the keyboard and mouse. See here, now I am starting your spreadsheet, that is openoffice.org CALC and LibreOffice CALC. I am starting this one. See, this is your file. Suppose I having this file, that is sales 2015. Okay, listen here, this is a workbook. This document is called a means जब भी हम कोई स्प्रेडशीट फाइल को हम एक्सेस करते हैं या कोई भी स्प्रेडशीट फाइल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं. और वर्कबुक के अंदर क्या होती है, डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं. नाउ व्हाट इज दिस वर्कबुक नेम, sales 2015. this is .ods, open document spreadsheet. अंडरस्टूड. ये आपकी एक वर्कबुक है. इसके अंदर आपके पास कितनी वर्कशीट्स हैं, यू हैव 3 वर्कशीट्स, 2015, 2016 एंड 2017. एंड एक होम शीट के नाम से आपके पास एक और है. अंडरस्टूड, वन होम शीट के नाम से आपके पास एक और है शीट. क्लियर? हम क्या करना चाहते हैं, सी हेयर, व्हाट वी वांट टू perform, we have to perform this one, create reference to other sheets by using the keyboard and mouse. means reference का मतलब क्या होता है, reference का मतलब क्या होता है, link, to establish the link between the different sheet, between the different sheet of a workbook, of a single workbook. ये हमारे पास एक सिंगल वर्कबुक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट वर्कशीट्स है, वर्कशीट्स है ना, डिफरेंट वर्कशीट्स. ओके, अब इनके बीच में हम क्या करना चाहते हैं, लिंकिंग, इंटरलिंकिंग करना चाहते हैं इनके बीच में हम. ओके, देखो कैसे करेंगे इंटरलिंकिंग हम इनके बीच में आपस में. सी हियर, now I am creating a different worksheet here, and you have to create the different worksheet, you have to click onto the plus symbol. Now see, sheet number 5 will come at the last. Clear? And now मैं इसको rename कर रहा हूँ, and you know how to rename. in your previous class you learned about how to rename this. Either you have to double click on this sheet 5, okay, or you have to right click and there is an option that is the rename sheet, click on it and rename. Now I am writing here interlinking. In this sheet name I am changed with the interlinking. Okay, sheets. Now see here, I am increasing the size of all the cells. Clear? Now see here, what I want here, see, ये आपकी जो 2015 वाली वर्कशीट है ना, this is 2015 worksheet. Okay, this total sales is displayed in which column, C10. This total sales displayed in which column,
Are you listening my voice? Yes, sir. हाँ, यस। यस सर। जब आपसे Yes, sir. हाँ पूछें तो आप जरूर बताइए, ठीक है, ताकि मुझे पता लगता रहेगा कि आप लोग सुन रहे हैं। क्लियर? तो 2015 सेल्स इज डिस्प्लेइंग ऑन C10 नंबर कॉलम, C10 नंबर सेल। ओके, नाउ व्हाट आई वांट द जो टोटल सेल्स है ऑफ टोटल सेल्स ऑफ 2015, ठीक है, वो मैं कहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। ठीक है, सेम टोटल सेल्स ऑफ 2016 की मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, जो 2016 वाले हमारी सी वर्कशीट है। ठीक है, और 17 वाली जो वर्कशीट है उसकी इसके नेक्स्ट वाले हेयर 2015 टोटल सेल्स आई वांट टू डिस्प्ले हेयर, और मैं इसका जो कलर है वो डिफरेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। 16 वाला जो सेल 16 वाली जो टोटल सेल्स है मैं उसको सेल नंबर F8 पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। ठीक है, उसको मैंने डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दे दिया है। और 2017 की जो सेल्स है आई वांट टू डिस्प्ले हेयर, एंड आई एम चेंजिंग द बैकग्राउंड ऑफ दिस सेल to this one. Understood? And here I am creating a grand total of the sale. Grand total of sales. Understood? And this I want to display here in this cell, and I want to change the color of this cell in this one. समझ में आ गया क्या करना चाहते हैं? मीन्स हम आपस में क्या कर रहे हैं, लिंक स्टैब्लिश कर रहे हैं, इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं। एक सीट मीन्स एक ही वर्कबुक है, एक ही वर्कबुक में डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स हैं, उनके बीच में क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरलिंकिंग कर रहे हैं कि हमने एक सीट बना दी अलग से, और जो डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स का जो भी वर्क था वो सारे वर्क को उनका जो कंसोलियम, ठीक है, उनका जो सारा वर्क था मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जो टोटल वर्क था यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मीन्स हम लिंक बना रहे हैं आपस में, लिंक स्टैब्लिश कर रहे हैं। देखो कैसे स्टैब्लिश करेंगे हम लिंक को। Now I am giving the border of these cells. See how can I give the border? Select the cells. Now here border option is there. Now click onto the border. Now border is applied. Same for the downside. Border apply कर दी. Now see how you establish this linking between the different worksheets of a same workbook. See, listen very carefully the steps. First you have to click onto the equals to symbol. ओके, जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं या कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, लिंकिंग कर रहे हैं सेल्स की, रेफरेंसिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट आई हैव टू प्लेस द इक्वल्स टू साइन। ओके, देन यू हैव टू सेलेक्ट, यहाँ पे क्या करना है, हमें 2015 की टोटल सेल्स को डिस्प्ले करना है, तो क्लिक ऑन टू दिस 2015। क्लियर? ओके, नाउ क्लिक ऑन टू दिस टोटल सेल्स सेल नंबर। ठीक है, अंडरस्टूड? देन सी आफ्टर दिस, after selecting the main column, main cells that you want to link on that sheet, then what is the next step? You have to click on to this right sign. देखो यहाँ पे एक right sign बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, एक्सेप्ट वाले बटन पे आपको क्या करना है, you have to click on this accept बटन। जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, देखो ये आपका जो सेल है वो क्या हो गया, लिंक हो गया आपकी इस डिफरेंट वर्कशीट पे, ऑटोमेटिक आपका डिस्प्ले हो गया। अब देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या आया, डॉलर का साइन आ गया। ठीक है, डॉलर के सिंबल के बाद क्या आ गया, आपकी उस वर्कशीट का नेम आ गया, उस वर्कशीट का नेम, डॉट का सिंबल, देन जिस सेल को आपने रेफरेंस किया है, यहाँ पे लिंक किया है, उस कॉलम का नेम आ गया। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो इट मीन्स रिमेंबर दिस थिंग, सी हियर। तो आप जब भी किसी सिमिलर वर्कशीट के अंदर, सिमिलर वर्कबुक के अंदर क्या करते हैं, इंटरलिंक करते हैं आपस में, ठीक है, इस शीट्स को, किसी स्पेसिफिक शीट्स के कॉलम्स को या सेल को आप इंटरलिंक करते हैं, तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इक्वल्स टू साइन होगा आपका। ठीक है, फिर क्या होगा आपका, उस सीट का नेम, यस प्लीज टेल ऑल्सो, सीट नेम, देन डॉट साइन होगा आपका। अंडरस्टूड? डॉट सिंबल, एंड आफ्टर डॉट सिंबल यू हैव टू राइट द सेल एड्रेस, जो भी आपका सेल एड्रेस होगा, सेल एड्रेस, ये आपका फॉर्मूला होता है लिखने का। अंडरस्टूड? समझ में आ गया कैसे लिंक करते हैं हम, इंटरनल लिंकिंग करते हैं डिफरेंट सीट्स ऑफ अ सेम वर्कबुक लाइक दिस। अंडरस्टूड? सेम। अब आपको कैसे लिंक करोगे, देखो इधर,
अब मैंने क्या किया, सेम मुझे कैसे लेना, 2016 वाले कॉलम को करना है यहाँ पे टोटल सेल्स को, तो इक्वल टू साइन, गो टू दैट सीट, देन click on to this cell total sales, where the total sale display, click on to that cell, then click on to this accept button. Now it is interlinked. Same for another, equals to sign, click on to this 2017 number worksheet, clear? Then this total sales, then accept this one. Understood? आगे यहाँ पे अब देखो टोटल सेल्स ग्रांड टोटल कैसे करोगे, तो आपको पता ही है, सम फॉर्मूले से हम ग्रांड टोटल कर सकते हैं, सम फॉर्मूला, देन you have to select these cells and enter. Understood this thing? समझ में आ गया आपको कैसे करते हैं हम? Yes, sir. हाँ, yes. Now see very carefully, listen very carefully and see it here. Create reference to other sheets by using the keyboard and mouse. This one is completed. Understood? Now बच्चों देखो, see, listen very carefully. How you change the name of the worksheet? You can change by this. See, double click here. मैं इस सीट का नाम चेंज कर रहा हूं, सेल्स 2015 कर रहा हूं मैं इसको। अंडरस्टूड? सेम मैं इसको क्या कर रहा हूं, सेल्स 2016 कर रहा हूं, सेल्स 2016। नाउ आई एम चेंजिंग दिस वन, सेल्स 2017। ओके, नाउ ओके, देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया ना नेम यहाँ पे, क्लियर? देखो सेल्स 2015 हो गया इसका, क्लियर है? नाउ बच्चों देखो इसका बेनिफिट क्या है आपको, सी इंटरलिंकिंग का मतलब, इफ आई चेंज, सी यहाँ पे देखो जनवरी की दीपक की सेल्स कितनी है, 1 लाख है, मैंने यहाँ पे इसको 3 लाख कर दिया, 3 लाख कर दिया, तो टोटल सेल्स भी चेंज हो गई ना, 8,66,000 हो गई अब, 8,66,000 हो गई अब आपकी। जो लेट आएगा उसको क्लास में अलाउ ही नहीं होगा। ओके, 8,66,000 होगी। नाउ सी, सेव करो इसको। नाउ हम देखते हैं इंटरलिंक सीट्स के अंदर भी चेंज हुआ या नहीं हुआ। देखो 8,66,000 हो गया ना चेंज ऑटोमेटिकली। Yes, this is the benefit of interlinking. Understood this thing? How can you interlink the spreadsheet or the data of a same? Yes, please tell. समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. हाँ बच्चों देखो, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है आपका, अब मैं एक दूसरी वर्कबुक ले रहा हूँ, देखो इधर सेकंड क्या है, क्रिएट रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट। अभी तो हम सिमिलर डॉक्यूमेंट मतलब एक्सेल में जहाँ हुआ, स्प्रेडशीट के अंदर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, एक वर्कबुक, और वर्कबुक की सेम डिफरेंट वर्कशीट। बट यहाँ पे क्या बोला है आपको, क्रिएट रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द कीबोर्ड एंड माउस। अदर डॉक्यूमेंट का मीनिंग एक आपकी डिफरेंट वर्कबुक है, किसी मीन्स हमारे पास 2 डिफरेंट वर्कबुक है, उनकी सीट्स को आपस में हम क्या करना चाहते हैं, इंटरलिंक करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे हम भाई, तो हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अंडरस्टूड? सी नाउ हाउ टू यू डू दिस, सी हियर। देखो ये तो आपकी एक वर्कबुक है सेल्स 2015.ods के नाम से। नाउ सी, अब हम एक सेकंड वर्कबुक और ओपन कर लेते हैं आपकी। सेकंड वर्कबुक का नाम क्या है यहाँ पे, AA.ods के नाम से है ये आपकी, ठीक है? अंडरस्टूड? ओके, मीन्स सेम हम यहाँ पे, ठीक है? ये आपकी कौन सी वर्कबुक है, 2000, दैट इज AA.ods के नाम से एक वर्कबुक है। इसके अंदर आपकी एक सीट है जिसका नाम क्या है, न्यू सीट। ओके, और एक सीट है इसमें 2017 के नाम से एक सीट है, न्यू सीट। देखो बच्चों हम क्या करना चाहते हैं, जो 2015 की सेल्स है किस वर्कबुक के अंदर है, वो टोटल से, उसमें से जो टोटल सेल्स है वो मैं इस सेल पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, सेल नंबर F6 पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। सेम F7 पे आई वांट टू डिस्प्ले द टोटल सेल्स ऑफ द 2016 वर्कशीट फ्रॉम द 2015 सेल्स वर्कबुक, and same for the here 2017 total sales I want to display here, and grand total I want to display here. Understood? Clear? देखो कैसे करेंगे इसको हम, ये वर्कबुक हमारी डिफरेंट है और जो हमें डेटा लेना है वो किसी डिफरेंट वर्कबुक से लेना है।
तो हमने क्या करना है, इसमें इंटरलिंक करना होगा ना, रेफरेंस करना होगा हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक की वर्कशीट्स के बीच में, आपस में डेटा के बीच में। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, देखो लिसन नाउ वेरी केयरफुली, सी द स्टेप्स वेरी केयरफुली। सेम सिमिलर स्टेप, फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन टू द cell in which you want to display the data, then write the equals to sign, equals to symbol or the sign. Understood? After this what you have to perform, after this you have to go to that workbook, you have to go to that workbook, select that workbook. Understood? अब हमने वो वर्कबुक सेलेक्ट कर ली, उस वर्कबुक को सेलेक्ट करने के बाद गो टू दैट वर्कशीट, गो टू दैट वर्कशीट, गो टू दैट वर्कशीट मींस 2015 की सेल्स शो करनी है ना हमें वहां पे अब, तो ओके क्लिक ऑन टू दैट सेल्स 2015 वर्कशीट, देन यू हैव टू क्लिक ऑन टू दिस टोटल सेल्स कॉलम, टोटल सेल्स जहां भी डिस्प्ले है उस सेल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हम एसेट का सिंबल कुछ भी नहीं होगा, बस जैसे हमने सेलेक्ट किया, सी नाउ गो टू योर न्यू वर्कबुक, जहां पे आप लिंक कर रहे हो उस पे जाओ, देखो क्या डिस्प्ले हो गया आपको, एक पाथ डिस्प्ले हुआ ना, यस प्लीज टेल। Yes, sir. हाँ, वन पाथ इज डिस्प्लेड। Yes, sir. भाई एक बच्चा ही सुन रहा है क्या मुझे? Yes, sir. हाँ, नाउ सी, देखो बच्चों क्या हुआ, पाथ डिस्प्ले हुआ, क्या पाथ है ये, नाउ सी वेरी केयरफुली। आपकी वो जो फाइल है वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो पाथ आया आपका यहाँ से यहाँ तक, तो वो पाथ है, यस। अंडरस्टूड? सबसे पहले तो क्या आया, उस फाइल का पाथ कि डेस्कटॉप पे है, क्लास 10th IT के नाम से एक फोल्डर है उसमें है, उसके अंदर भी एक सब फोल्डर है एडवांस स्प्रेडशीट, उसके अंदर भी एक सब फोल्डर है 16 जून 2020 के नाम से फोल्डर है। ठीक है, ये तो पाथ हो गया उसका फाइल का कि वो फाइल मेरी किस पाथ में है। अब उसके अंदर पाथ के बाद में क्या डिस्प्ले हुआ यहाँ पे, सेज 2015.ods की कौन सी वर्कबुक है भाई, कौन सी वर्कबुक से लिंक कर रहे हैं हम इसको, इस वाली वर्कबुक से लिंक कर रहे हैं। फिर उसके बाद में एक हैश का साइन आया और क्या डिस्प्ले हुआ, उस वर्कशीट का नाम, जिस वर्कशीट से हम क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं इस कॉलम को, इस सेल को लिंक कर रहे हैं हम, सेज 2015, और एट लास्ट डॉट लगा के उस पर्टिकुलर सेल का नाम आ गया, उस पर्टिकुलर सेल का नेम, द नेम ऑफ दैट सेल। अंडरस्टूड? तो समझ में आया कैसे लिंक करते हैं हम? नाउ लिसन। Yes, sir. हाँ, नाउ एंटर करो, देखो बच्चों वो सेल डिस्प्ले हो गई। तो आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना है। तो फॉर्मूला क्या बना जी, पहले वाला फॉर्मूला तो किसके लिए था, सेम वर्कबुक के लिए था, सेम वर्कबुक। okay, for same workbook, if you want to interlink, if you want to reference the sheets, the data of the sheets in a same workbook, तो ये वाला फॉर्मूला तो उसके लिए हो गया। और यदि आपकी वर्कबुक क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट वर्कबुक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स के डेटा को कैसे रेफरेंस करेंगे या लिंक करेंगे, जल्दी बताइए क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा फॉर्मूला, इक्वल्स टू साइन, equals to sign, then path of file in your system। ठीक है, path और फाइल के बाद क्या होगा आपका, आफ्टर path of file what you have to write here, वर्कबुक नेम, वर्कबुक नेम, जो भी आपकी वर्कबुक नेम थी, कौन सी वर्कबुक थी यहाँ पे, कौन सी वर्कबुक थी, ये 2015 वाली वर्कबुक थी ना, देखो ये वर्कबुक टू सेल्स 2015.ods, ये पूरा आएगा विद एक्सटेंशन। अंडरस्टूड? नाउ आफ्टर दैट हैश साइन था ना, हैश सिंबल, ओके, देन यू हैव टू राइट व्हाट, वर्कशीट नेम, जो भी नेम ऑफ द वर्कशीट था, वर्कशीट नेम, देन डॉट सेल नेम, सेल एड्रेस। तो ये वाला फॉर्मूला, दैट इज दिस फॉर्मूला is used to reference। understood? समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. okay, so please remember, please remember these steps। क्लियर कि सिमिलर वर्कबुक के अंदर हम कैसे रेफरेंस करते हैं और डिफरेंट वर्कबुक के अंदर हम कैसे रेफरेंस करते हैं डेटा को।
कैसे लिंक करते हैं। अंडर रेफरेंस का मतलब लिंक, अंडरस्टूड, समझ, अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ सी, नाउ वी हैव टू इंटरलिंक दिस वन also, then same equals to sign, then go to the workbook, okay, then select the worksheet, select the cell, then you have to go to the your new workbook. Now see the path will come, then click onto the enter. Same for the third column, equals to sign, please not talking, म्यूट कर लें अपने आप को, equals to sign, same, select the worksheet workbook, then select the worksheet, then select the cell, and after that go to the new workbook, then enter, अंडरस्टूड, सिमिलर। नाउ ग्रैंड टोटल के लिए तो आपको पता ही कैसे करते हो, ग्रैंड टोटल सम किया हमने, देन आफ्टर सम यू हैव टू सेलेक्ट द सेल्स जिनको हमें सम करना है, देन एंटर, क्लिक, अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ सी, सेम बेनिफिट इज हेयर कि यदि आप कुछ भी चेंज करते हैं यहाँ पे इस सीट के अंदर, सी हेयर मैंने 2015 में 15 वाली जो है सेल्स 2015.ods जो वर्कबुक है, इसमें जो दीपक है, ठीक है, दीपक की जो जनवरी की सेल्स है उसको मैंने 40,000 से क्या कर दिया, सी हेयर, नाउ आई चेंजेस फ्रॉम 40,000 टू 1 लाख, अंडरस्टूड, 1 लाख कर दिया मैंने, देखो इसको सेव किया मैंने। नाउ सी, मीन्स जो चेंज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं फाइल के अंदर, तो सेम चेंजेस विल अप्लाइड ऑन टू द लिंक्ड वर्कशीट और लिंक्ड वर्कबुक फाइल्स, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे सी कितना था, यहाँ पे सेल्स 8,25,238, 8,25,000। अभी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है ना, तो आप क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे फाइल को, ठीक है, देन रीओपन इट अगेन, ओपन इट अगेन this workbook and corrupt, same option, and corrupt. please, yes, now see one option is there, automatic update the external links, जो आपने external link establish किया है उसको आप अपडेट करना है आपको, yes, allowed the updating, clear। now see the sales is changed now 8,25,238, और सेम यहाँ पे हमारी इस 2015 के अंदर है दीपक की यहाँ पे, ठीक है, टोटल सेल्स, अंडरस्टूड, समझ में आ गया यहाँ तक, understood till here? Yes, sir. Okay, now listen very carefully. Now we completed this third topic. Now the next topic is about the create, edit and remove the hyperlinks to the sheets. Hyperlinks क्या होते हैं भाई, पता है आपको hyperlinks क्या होते हैं? Who will tell me about the hyperlinks? क्या सर? See, next topic क्या है हमारा, कि हम कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, किसको, हाइपरलिंक्स को, इन आ वर्कशीट, किसी भी वर्कशीट में हम हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और रिमूव करते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, सी हियर, क्या होता है हाइपरलिंक, बता सकता है कोई मुझे, हाइपरलिंक क्या होता है? जो गुस्सा हो रही है। यस, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द हाइपरलिंक्स। सी हियर, जैसे बच्चों देखो गूगल में हम कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं यहाँ पे, ठीक है, नाउ आई एम सर्चिंग हेयर इन गूगल, जैसे आपका कोई साइंस का टॉपिक, चलो कंप्यूटर का ही टॉपिक लिख देते हैं हम, फॉर्मेटिंग लिख देते हैं, सी हियर formatting, whenever you are searching here, see now there are so many links are there, if I click on this, so one, there are different website will open, if I click on this, a different website will open, if I click on this, I have to redirect some other where else place, understood? So these are called what, these are called the link or the hyperlink. So hyperlink क्या होते हैं, hyperlinks are the links, if you click on that you have to redirect some other where else or some other places. So these types of text in which if you click on that and you go somewhere else place, so that type of text is called the hyperlink text or the hypertext. समझ में आ गया hyperlink क्या होता है? Yes sir. Okay, अब हम सीखेंगे कि आप hyperlink कैसे क्रिएट करते हो आपकी वर्कशीट्स के अंदर। ये आपकी वर्कबुक है, हम एक नई वर्कशीट ले रहे हैं यहाँ पे, सी
ठीक है, और मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ मैं हाइपरलिंक, हाइपरलिंक। ओके, नाउ सी कैसे क्रिएट करते हैं हम हाइपरलिंक। सी हेयर, नाउ आई एम चेंजिंग द साइज। सी, you have a insert menu here, insert menu onto the menu bar. Okay, your hyperlink option is available onto the insert menu. If you click on this insert menu, a drop down list will appear. Okay, here is the one option, that is hyperlink option is there. And what is the shortcut key for creating the hyperlink? Yes, please tell me. What is the shortcut key for creating the hyperlink? Control plus K. Control plus K. You have to remember this. You have to remember this. How to create the hyperlink. You have to remember this. Okay. Yes. See here. एक तो आपके पास ये ऑप्शन हो गया. If I click on this, तो आप विंडो hyperlink window will visible onto your screen. अब इसके पास देखो, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. आप किसी इंटरनेट के पेज को आप क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो. यहाँ पे आपके स्प्रेडशीट में आपका ईमेल का भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो. आप किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का क्रिएट कर सकते हो और न्यू डॉक्यूमेंट बना के उसको भी क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो. नाउ 4 ऑप्शंस आर देयर. केवल आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन ही काम के हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज द इंटरनेट और सेकंड वन इज द किसी डॉक्यूमेंट को हम कैसे इंटरलिंक करते हैं या फिर हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं आपकी वर्कशीट के अंदर. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को आप अपनी वर्कशीट के अंदर, वर्कबुक के अंदर कैसे हाइपरलिंक क्रिएट करते हो उसका. सी हेयर वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली. ओके, एंड सी लिसन. देखो सेकंड ऑप्शन क्या है आपके हाइपरलिंक क्रिएट करने का. फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, गो टू द इंसर्ट मेन्यू एंड यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट हाइपरलिंक ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन इज शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल प्लस के. देखो मैं कंट्रोल प्लस के कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस के, तो आपका सेम हाइपरलिंक विंडो विल ओपन. थर्ड ऑप्शन है आपका ये स्टैंडर्ड टूल बार है हमारा, जो मेन्यू बार के नीचे जो हमारा टूल बार है ना, दैट इज स्टैंडर्ड टूल बार, दैट इज स्टैंडर्ड टूल बार. ओके, ये स्टैंडर्ड टूल बार है आपका. इस स्टैंडर्ड टूल बार में देखो यहाँ पे एक अर्थ का साइन बना हुआ है, एट लास्ट बना हुआ है अर्थ का साइन, बना हुआ है ना अर्थ का साइन. अर्थ के साथ में यहाँ चेन सीयर बनी हुई है, तो ये वाला सिंबल किसका है आपका, हाइपरलिंक का है. इफ यू क्लिक ऑन दिस, तो सेम ऑप्शन, द हाइपरलिंक ऑप्शन विल ओपन ऑन टू योर स्क्रीन. अंडरस्टूड, विजिबल ऑन टू योर स्क्रीन. अब देखो कैसे क्रिएट करते हैं हम हाइपरलिंक को. सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट द हाइपरलिंक. अंडरस्टूड. देखो कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम इंटरनेट वाले ऑप्शन को ही देख लेते हैं. क्लियर. इसमें 2 ऑप्शन है यहाँ पे, वेब और एफटीपी. एफटीपी का कोई यूज नहीं है अभी हमारा, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए होता है, इसका कोई यूज नहीं है अभी. हमें किसका यूज है अभी, वेब का. देखो सी, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यूआरएल देते हैं. जिस भी वेबसाइट को मुझे यहाँ पे लिंक कर, किसी वेब पेज को मुझे लिंक करना है, मैं उसका यहाँ पे यूआरएल स्पेसिफाई करता हूँ. यूआरएल क्या होता है, उस वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द यूनिक एड्रेस ऑफ द वेबसाइट. जैसे देखो सी हियर, ये हम अपनी स्कूल की वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, दैट इज आरपीएस बहरोड. ये आपकी स्कूल की वेबसाइट ओपन हो गई है, देखो, ठीक है, ये आपकी स्कूल की वेबसाइट है. सी हेयर, अब मैं यहाँ पे किस पे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे, मैंने इसमें एक पेज है आपका डायरेक्टर पेज, मैंने इस वाले पेज पे आ गया. क्लियर. अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे जो एड्रेस बार में जो मैंने एड्रेस बार पे क्लिक किया, तो ये जो एड्रेस आपका एड्रेस बार पे शो हो रहा है, जिसको मैं भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिस एड्रेस इज नोन एज द यूआरएल ऑफ दिस वेब पेज. मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया अभी. नाउ आई कॉपी दिस वेब एड्रेस. समझ में आ गया. तो दिस इज द यूआरएल टू ओपन दिस वेब पेज ऑन टू द वेब. अंडरस्टूड. मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, अब सी हियर, ये हमारी स्प्रेडशीट है. इस स्प्रेडशीट में इस वेब एड्रेस को लिंक करना चाहता हूँ, उसका लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ. आई वांट टू क्रिएट अ हाइपरलिंक ऑफ दैट वेब एड्रेस. तो मुझे यूआरएल, देखो यहाँ पे यूआरएल में उस यूआरएल को जो मैंने कॉपी किया है,
दैट यूआरएल आई हैव टू पेस्ट हियर, मैंने इस यूआरएल को क्या कर दिया यहाँ पे पेस्ट कर दिया ना पेस्ट। अब देखो इसमें कुछ और सेटिंग्स भी हमें अप्लाई करनी पड़ती है। क्या सेटिंग है? फर्दर सेटिंग, सी हियर फ्रेम में आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ये वेबसाइट की सेटिंग्स होती है, अंडरस्टूड। नाउ रीजॉइन करना है। हाँ यस, यू हैव टू रिजॉइन, you have to rejoin after completing the class. Only 1 minute, less than 1 minute is left. चलो इसको क्लोज ही हो जाने दो, अब मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा ये हाइपरलिंक वाला, अंडरस्टूड। बेटा यस, यू आर अंडरस्टैंडिंग।